इसको सवाल नहीं करते, सवाल आई थिंक लास्ट क्लास में कर लिया था। मैकेनिज्म देखते हैं सीधा। बट प्लीज एक बार थोड़ा सा नोटबुक को फ्लिप कर लीजिए। लुक व्हाट वी डिड इन द लास्ट लेक्चर, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लीज राइट मैकेनिज्म। Here, so we have CH3, single bond CH2, single bond CH3 plus Br2. In the presence of UV, is going to give CH3, CH2, CH2Br plus CH3, CH, CH3 and Br on the middle carbon. Because there are two different types of carbon atoms, that is why you are going to get two products. Now, obviously, we are taking the case in which the alkane is excess, and we discussed that point, that how can we have only one mono halo products. So we can have mono halo products only when we have the alkane in excess. We are taking that case. अब उसी में we did like how many mono halo products can be formed. So there are two products because of the two different types of carbon atom that we have here. Now, how the reaction takes place in free radical mechanism, उसके लिए सबसे पहला step जो है, that is chain initiation step. Chain initiation. In chain initiation, what you need to do, so you have Br bond and then you have Br. अब यहाँ पे आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं. In the presence of UV, a free radical यहाँ पे homolysis होगा. That means heterolytic fission and homolytic fission. In here, homolytic fission, one electron goes to one Br and the other electron goes to one Br, and you get two Br free radicals. Br free radical plus Br free radical. In chain initiation step, if you want to identify, then in the reactant there will be zero radicals, and in the product there will be some radicals. है ना? If you are going from zero radical to some radicals, then it is a chain initiation step. The next step that happens is the chain propagation step. Chain propagation. In chain propagation, this is important because CH3 bonded to CH and bonded to CH2. I am showing this hydrogen as explicitly showing this hydrogen and this hydrogen. Okay, because we have only two different types of hydrogen, 1 degree and 2 degree. This hydrogen and these hydrogens are same, so I am not differentiating between them. अब यहाँ पे आपके पास है Br free radical. Now the Br free radical can attack like this and form a bond with HBr. है ना? यहाँ से HBr निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, this 2 degree carbon. Or another reaction can occur. This Br free radical can take away, this Br free radical can take away this hydrogen atom like this, and then one of the electron from this bond will go to this 1 degree carbon atom. So there are two pathways, the red pathway or the blue pathway, which is going to be followed. So let us analyze both the pathways. So in the red pathway, what are the products we are getting? So we are getting CH3 as it is, the CH as it is, and the CH3 as it is, because nothing is happening to the this third carbon atom when you are doing the red pathway. And there is a free radical on this carbon atom. If I take the blue pathway, please try to understand that in the blue pathway, we are going to have CH3 as it is, the CH2 will be as it is, and we will be getting CH2 free radical, because in the blue pathway, you have to ignore whatever is happening in the red. Red वाला हो ही नहीं रहा है, समझिए. This blue pathway को देखिए, तो in blue pathway, we are going to get one free radical in the CH2, as you can see here. अच्छा, in both of these cases, we are going to get HBr as the byproduct plus HBr.
Before dealing which is a more stable free radical, let us see what is the most important part in chain propagation. In chain propagation, you will have one radical in the reactant part, and there will be one radical in the product part also. And as you can see, there is Br free radical in the reactant part, and there is an alkane free radical in the product part. Now let's look at the stability. So this is 2 degree and more stable. This is 1 degree and less stable. So whatever is having higher stability, it is going to give you the main product or the major product. And the last step is chain termination. In chain termination step, there will be radicals in the reactant side, but there will be zero radical in the product side. And a few chain termination step I will write. For example, I have something like this, plus a Br radical will come again, and they both can form bonds like this. Obviously, this will be major and this will be minor. Will you please copy this down? Raise your hand if you're done. Let me know if you have any doubts. Raise your hand if you're done, guys. Waiting for Khadija. Yahya, Siddiqa. Siddiqa to have late, I think. Mariam, understood the mechanism, yes or no? Yes, sir. Moving on. Write a note. Rate of free radical halogenation depends on stability of carbon free radical. Rate is directly proportional to stability of carbon free radical. So we can say that the rate will be fastest in the case of benzyl, followed by allyl, followed by 3 degree, and then 2 degree, and then 1 degree.
ठीक है, इसीलिए इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, तो दिस कार्बन एटम इज द बेंजाइल कार्बन, है ना, और ये कार्बन एटम बेंजाइल तो नहीं है। तो इन बोथ, आई मीन इफ आई add Cl2 in the presence of light, then the blue carbon atom, which is the alkane carbon, sp3 hybridized carbon atom, that is going to get halogenated. तो यहाँ पे Cl मिल जाएगा। तो similarly, if you have something like this and you add Br2 in the presence of UV, you can see that allyl position, this position and this positions are same, right? Both of these are allyl position. And this red one is what it is, just a 2 degree. So blue wala, because it is allyl, there will be resonance stabilization, and the blue one will. So by the way, this is major, है ना? Both the products will be formed, but this is going to be a major product. यहाँ पे what's going to happen? The pi bond will be as it is, and the blue carbon is going to get bromine. ठीक है, उसी तरह से this is another form of allyl. अब यहाँ पे, अच्छा tell me which carbon is allyl ना? 1 2 3 4 में कौन सा कार्बन allyl है? Which of the carbon is allyl? चैट में बताइएगा प्लीज, which carbon is the allylic carbon? 1 2 3 4 में। Guys, which carbon is allylic? यहिया, मरियम, खदीजा, सिद्दीका, हर्षा। हाँ ठीक है खदीजा, वेरी गुड। यस हर्षा, करेक्ट। बाकी लोग का नहीं पता, मरियम, सिद्दीका, यहिया। अरे हाँ या ना, जल्दी तो बताओ कम से कम। So can you repeat the question? मेरे पास आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच कार्बन इज अलाइलिक कार्बन? मरियम आपको नहीं पता? विच कार्बन इज अलाइलिक कार्बन? अलाइल। Sir, I didn't listen to the recording of the last class. फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, इवन दो द फर्स्ट क्लास इट इज लाइक, इट वुड लाइक क्या ही पढ़ाई हो रही है, लेकिन इसमें जो वर्ड्स है ना, दोज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड कार्बन इज अलाइलिक कार्बन, ठीक है। अलाइलिक कार्बन में इट विल प्रेफरेबली गो टू, अब ये आपको यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा, क्लोरीन। ठीक है, एवरीथिंग विल बी एज इट इज, थर्ड कार्बन में क्लोरीन लग जाएगा। चलिए प्लीज कॉपी दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन। जल्दी लिखिए, खदीजा, सिद्दीका, हर्षा, यहिया। हर्षा, हर्षा, Yes, sir. ये आपने वो बाकी के रिएक्शन कर लिए थे डीएनएस ब्लॉक के? Sir, the last class? हाँ लास्ट क्लास वाला। No, sir, I didn't. तो उसको कर लीजिए, फिर भूल जाइएगा। दो तीन है ना, जो उसको थोड़ा टाइम निकाल के कर लीजिए, एक बार में खत्म हो जाए तो बेहतर होगा, है ना। Okay, sir. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। राइट, नेक्स्ट बाय इलेक्ट्रोफिलिक। अच्छा यहाँ पे फ्रॉम एल्केन वी आर लुकिंग एट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला है फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन। सेकंड वन, प्लीज राइट विथ मी। देखिएगा, बाय इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बाय इलेक्ट्रोफिलिक
aromatic substitution. ठीक है. Now this is a old reaction जिसमें आपको क्या मिलेगा, benzene plus Cl2 in the presence of AlCl3 या फिर FeCl3, you will get chlorobenzene. In the presence of Br2, Br2 के लिए आप Fe और FeBr3 you can use and you will get bromobenzene. ठीक है. अब यहाँ पे you have to remember one thing that's very important. Cl positive in the case of chlorination and Br positive in the case of bromination acts as an electrophile in electrophilic aromatic substitution. ठीक है. This statement is from the 11th standard itself, from the mechanism. अच्छा, अब इसके बाद there are two points that we need to remember. If there is an electron donating group attached such as CH3, and then you are doing chlorination or bromination in the presence of a suitable uh, catalyst such as AlCl3. Now, in this case, there you will be getting two products. One will be ortho and the other will be para, because plus M group are ortho para directing. So आपको मिलेगा chlorine यहाँ पे, plus you will get another product in which the chlorine is in the para position. ठीक है. Now, if you have a meta directing group such as nitro group, and this is a minus M group, and if you do, let us suppose, bromination in the presence of Fe, you get NO2 in the and Br in the meta position. Raise your hand once you're done. चलो. Now, since everyone is done, moving to the next part. The third one is from alkene. Alkene का पूरा section बहुत important है ना. अच्छा, by the way, this reaction electrophilic aromatic substitution will be repeated in every chapter. इसके बारे में तो हम बोलेंगे, बहुत ज्यादा आप ध्यान नहीं भी दीजिएगा, तो एट द एंड ऑफ द क्लास 12th स्टैंडर्ड आपको याद ही हो जाएगा, बिकॉज हर चैप्टर में आएगा, कहीं कहीं दो दो बार आएगा. ठीक है. राइट. नेक्स्ट, थर्ड वन इज, अच्छा भाई देखते, अगर हर चैप्टर में आ रहा है तो इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई है ना, तो इसका भी ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि छोड़ ही देना है बिल्कुल. ठीक है. चलिए, द थर्ड वन फ्रॉम एल्कीन. एल्कीन्स में राइट नंबर वन,
एल्कीन से वी आर गोइंग टू सी थ्री डिफरेंट रिएक्शन। पहला है हैलोजनेशन ऑफ एल्कीन। हैलोजनेशन ऑफ एल्कीन। वी हैव कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और बाकी बॉन्ड्स यहाँ पे है इस तरह से, प्लस हैलोजन। So the two bonds which were they will be as it is. The pi bond will break. ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे हैलोजन, एंड यहाँ पे हैलोजन। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, द कार्बन कार्बन pi bond is breaking, and carbon halogen sigma bond is formed. ठीक है, and I hope you guys remember this is known as vicinal dihalide. You can write a statement: when alkenes are treated with halogen, they form vicinal dihalide. ठीक है, now write a note: bromination is used as a test for unsaturation. ठीक, क्या मतलब इसका? तो बेसिकली व्हेन यू हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें if you are going to add Br2, then this will be brownish red in color, और फिर ये देगा आपको CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br and Br, and this is colorless. That means if there is any unsaturated hydrocarbon, if there is any unsaturated hydrocarbon, whether it has double bond or it has triple bond, then it can decolorize the bromine water. So basically, you can write alkenes decolorize bromine water. Write the products for following. Let me know if you need help, कि एक अगर हम बना के दिखा दें, then you can make the rest, then please let me know, हम एक बना के दिखा देंगे आपको।
चलिए, तो मैं डू, देखिए हम एक बार बताते हैं। बेसिकली आपको पाई बॉन्ड तोड़ देना है, और जहां जहां पे पाई बॉन्ड था वहां पे आपको दिया मतलब हाइड्रोजन लगा देना है इस तरह से। मेक सेंस? जैसे नबी समी, मरियम, यहिया, खदीजा, सिद्दीका, हर्षा। यस आप Yes. बताइए। ठीक है ना, जल्दी Yes. कीजिए सर, जल्दी कीजिए, सेंड द आंसर ऑन माय व्हाट्सएप। हम कोई हिंट नहीं देंगे तो हम सब सवाल नहीं करेगा, ठीक है। डू वट एवर यू फील इज राइट। ओके यहिया, ओके मरियम, वेटिंग फॉर खदीजा एंड सिद्दीका। जल्दी भेजिएगा आंसर प्लीज। सिद्दीका कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप ये बताइए तो पहले। सिद्दीका एक भी हुआ? अच्छा भेज दिया सिद्दीका ने। Yeah, I sent it. जी जी जी, मिल गया मिल गया। ओके, एंड जस्ट वेटिंग फॉर खदीजा। खदीजा अभी भेज दीजिए जल्दी। Yes, sir. बाय द वे फोर्थ वाला अभी तक किसी का सही नहीं आया है। फोर्थ वन इज रॉन्ग, वेदर इट इज मरियम, यहिया और सिद्दीका। थोड़ा सा देखिए फोर्थ वाले में क्या होगा। ये थर्ड में क्या किया आपने खदीजा? खदीजा, Yes, sir. थर्ड में क्या किया, थर्ड में? Uh, 1 second.
ये देखिए सेकंड वन इज करेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। मेक एवरीथिंग एज इट इज, जहां पे पाई बॉन्ड वहां पे क्लोरीन कर दीजिए। मेक एवरीथिंग एज इट इज, जहां पे पाई बॉन्ड वहां पे क्या कर दीजिए, मतलब डोंट राइट द पाई बॉन्ड, बी आर एंड बी आर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना था कि दिस इज अ फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। इफ देयर इज अ फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, अब ये अलाइल वाला कार्बन, दीज आर द अलाइल कार्बन, so the major product will be this product, the pi bond will be as it is, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरीन। गॉट इट, यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस। Yes, sir. yes sir, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। कैन आई मूव ऑन, यस और नो, प्लीज टेल मी। कैन आई मूव ऑन? yes sir, चलिए सवाल लिखिए। A hydrocarbon C5H10 does not react with chlorine in dark, but gives a single monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight. Identify the hydrocarbon फिर से होना है तो लगभग तो आप पाठ ध्यान नहीं आता। ठीक। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आया ना, बताइए। व्हाट द फर्स्ट yes sir, स्टेटमेंट सेइंग? क्या बोल रहा है? C5H10 बोलो। C5H10 does not Does react not with react chlorine, with chlorine in dark. Doesn't react Chlorine with chlorine. ठीक है, C5H10 एक करेंगे, Cl2 dark, no reaction. What else it is saying? C5H10 gives single monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight, है ना? क्लोरीनेशन में क्या मिलता है इसको? ब्राइट सनलाइट में एक मोनोक्लोरो, जबकि C5Cl2 in the presence of sunlight. Does it make sense? हाँ या ना बोलो। yes sir, Yes, sir. ठीक है, दैट मीन्स वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय क्लोरीन, तो ये पक्का एल्केन होगा। पक्का क्या होगा? हाँ या ना? alkene, एल्केन होगा। Alkene. बट कैन यू सी द फॉर्मूला? ये क्या, ये एल्केन हो सकता है क्या? कैन यू सी द फॉर्मूला? C5H10, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन? एल्केन का जनरल फॉर्मूला बोला CnH, बोलो। जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन HCnH, 2n, Two. बोलो। Two यस, and व्हाट? 2n, बस 2n? 2n plus n, 2n. पूरा बोलो भाई, पूरा बोलो भाई, हम कुछ नहीं लिखेंगे। Cn व्हाट द H2n plus 1, गलत। और बोलो मरियम, H2n plus 2, जोर से बोलिए भैया। Cn H2n plus 2, हाँ, H2n+2 is this compound according to this formula, yes or no, please tell me. no sir, No, फिर क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो प्लीज रिमेंबर दिस इज फॉर चेन एल्कीन। नॉर्मल चेन अगर होगा तो उसके लिए एल्कीन के लिए CnH2n+2। एल्कीन दो तरीके के होते हैं, एक आपके पास चेन वाले होते हैं, ओपन चेन, एंड देयर वन इज साइक्लिक। एक साइक्लिक एल्कीन और एक ओपन चेन वाले होते हैं ना, ओपन चेन। तो इन ओपन चेन दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइक्लिक वन, द फॉर्मूला इज CnH2n। अब अगर साइक्लिक की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा,
5 में आपके पास देयर आर वेरिएबल पॉसिबिलिटीज. यू हैव 3 कार्बन का रिंग, 2 कार्बन ऐसे, 3 कार्बन का रिंग, 2 कार्बन ऐसे, you have 4 carbon का ring and 1 carbon ऐसे, and you have 5 carbon atoms. Now all of these are going to have the formula C5H10. Let me show you how. 1 carbon atom, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन. ठीक है, तो 3 3 6, राइट, 7 8 9 10. फॉर माई इंग्लिश ऑडियंस 3 + 3 is 6, 7 8 9 10. If I compare here 2 hydrogen, 2 hydrogen, 4. यहाँ पे 1 hydrogen. Here we are going to have 2 hydrogens. Here we are going to have 3 hydrogens, right? So 2 2 2 6 7 8 9 10. So all of these are according to the formula of C5H10. Now the next statement comes. It gives a single monochloro compound. A single monochloro compound. It is not going to give you 2 products, 3 products, or 5 products. It's only going to give you 1 product. तो कौन सा होगा बताओ ABCD में से? Which of the following will give you only 1 product? बोलो. On chlorination, which of the following will give you only 1 product? बोलो भाई, लास्ट क्लास में कराया था यार, किसी को नहीं पता. ओ गॉड. B. तुक्का नहीं मारना है रे भाई, तुक्का मारेंगे मारेंगे हम आपको लोगों को, तुक्का मार रहे हैं बैठ के. यू लुक एट द कार्बन एटम्स की किसमें आपके पास सिमेट्रिकल कार्बन है, सेम टाइप ऑफ कार्बन एटम्स. मी राइट दिस अगेन. अरे भाई कितने, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू आर गोइंग टू गेट, ये तो सबको सिखाया हुआ है ना, यहाँ पे कोई आंसर क्यों नहीं आ रहा है? वेदर यू विल गेट 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट्स, किसी कंपाउंड को देख के आप बता सकते हैं ना. लास्ट क्लास में ये तो सारा किया है हम लोगों ने. Yes, sir. अब बताइए कौन से Yes. में आपको 1 प्रोडक्ट मिलेगा बस. सेंड द आंसर इन द जूम चैट. जल्दी 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 बताओ. इनमें अरे यार, काउंट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स ना, 1 2 3 डिग्री वाले कितने कितने कार्बन है. इन विच ऑफ दीज केसेस वी हैव ओनली 1 टाइप ऑफ कार्बन एटम. ये देखना है आपको, सारे के सारे कार्बन सेम टाइप के. जल्दी बताओ. ड्राइवर सवाल है, रिवाइज करके नहीं आ रहे बच्चे भाई. D. बाकी पता नहीं क्या ही कर रहे हैं. ऑल दी कार्बन एटम्स आर सेम. चलिए कॉपी दिस डाउन. बाय द वे पूरा ही कॉपी कर लीजिए, थोड़ा सा प्रोसेस आपको समझ में आएगा. बाय द वे दिस क्वेश्चन विल कम फॉर 1 मार्क्स. बोर्ड्स में ये सवाल आएगा ना तो 1 मार्क्स का आएगा. ठीक है, बिकॉज इट इज ओनली सेइंग आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन. तो यू हैव टू जस्ट राइट द आंसर. द हाइड्रोकार्बन इज दिस साइक्लोपेंटेन. बाकी वट एवर मतलब जो भी दिमाग लग रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है. आंसर में इसी में मार्क्स मिलेगा बस. ऊपर से नीचे तक कुछ भी कर लिया आपने, कुछ नहीं मार्क्स मिलेगा. डज इट मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी. ठीक Yes, है, sir. तो ये बातें आपको Yes, पता sir. रहनी चाहिए. कौन से सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स. अगर आपके पास 3 मार्क्स का कोई सवाल भी आएगा ना तो उसमें 3 रिएक्शन होंगे, और इट विल बी आस्किंग यू टू ड्रॉ दी 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, इस तरह से कुछ होगा. रेज योर हैंड वंस यू आर डन. चलिए अगला लिखिएगा. बी पार्ट, हाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ एल्कीन. ध्यान दीजिएगा, व्हेन यू हैव कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन in the presence of HX, the pi bond break
द टू बॉन्ड्स आर एज इट इज, एक कार्बन को मिलेगा हाइड्रोजन, दूसरे को मिलेगा हैलोजन। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक कार्बन को आप दे दीजिए हाइड्रोजन, तो CH2 से CH3, द अदर कार्बन विल बी CH2Br। ठीक है, सिमिलरली जब भी आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन हो ना, वी आर गोइंग टू टेक ओनली द केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन। फॉर एग्जांपल अभी नेक्स्ट क्लास में तो वी आर गोइंग टू टेक अनसिमेट्रिकल आल्सो। तो HCl फ्रॉम द टू डबल बॉन्ड किसी एक में भी आप फ्लोरीन कर दीजिए ना, दिस कार्बन एटम इज गोइंग टू गेट द हाइड्रोजन, बट वी डोंट शो द हाइड्रोजन इन द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, so hydrogen are already adjusted। दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल, इसमें से किसी एक में भी आप आयोडीन डाल दीजिए। ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? यस सर सर। सेकंड वन एक्सप्लेन कर सकते हैं मुझे? हाँ बोलिए बोलिए, क्या हो गया? सेकंड वन एक्सप्लेन कर सकते हैं मुझे? हम्म, क्या एक्सप्लेन करना है इसमें, कोई समझ नहीं आ रहा, बताइए क्या नहीं समझ में आया आपको? वो HCl का H का क्या वो सुनिए। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है अभी? चार हाइड्रोजन है। चार? यार नहीं, ये यार थोड़ा, अच्छा वो जगह पे H, हाँ एक है। एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? गॉट इट? ओह यस सर। है ना? वो बॉन्ड लाइन में असल में वी डोंट एक्सप्लिसिटली शो दी हाइड्रोजन एटम्स ना, तो बस बॉन्ड लाइन बनाइएगा तो हाइड्रोजन आर टेकन केयर ऑफ ऑलरेडी। अच्छा सर, थैंक तो यू ड्रॉ दिस, कर लिखिएगा। When alkene is symmetrical, attach the halogen to any one of the doubly bonded carbon atoms and attach hydrogen on the other carbon। Waiting for Siddika। देखिए, अब जरा देखिएगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन में व्हाट वी नीड टू डू, ध्यान सुनिएगा।
First of all, how to identify unsymmetrical alkene? आप break the double bond like this. So on the either side of the double bond, you will get different fragments. Can you see that? Yes or no? Please tell me. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना? वही, लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा होता, तो once you break it, both the fragments are same, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. So this Yes, is symmetrical, है ना? ये this is symmetrical, and this one is unsymmetrical. So when you have unsymmetrical alkene, and let's suppose you are adding HBr, then you will get two products. Either the bromine will attach to the last terminal carbon atom, या फिर दूसरे से अटैच हो जाएगा मिडिल कार्बन आटम. Does it make sense? हाँ या ना बताइए. Yes, sir. yes, sir. Yes, ठीक है. sir. तो अब Br को अटैच कहाँ पे करना है, तो ध्यान दीजिएगा जरा. दोनों तरीके से हम आपको बता देते हैं. लाइक लुकिंग एट द रिएक्शन, यू कैन टेल मी Br will attach on the first carbon और second carbon. और प्रोडक्ट भी सीधा सीधा बना सकते हैं हम ना. दोनों प्रोडक्ट बना के कौन सा मेजर है वो भी बता सकते हैं. ध्यान सुनिएगा. सुन रहे हैं? हाँ या ना? सुन रहे हैं? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. सुनिए, प्रोडक्ट बन जाएगा ना दोनों. ये बताइए पहले. Yes. आपको Yes, ये sir. पाई बॉन्ड हटाना है. वंस यू अटैच द ब्रोमीन ऑन दिस कार्बन एंड द अदर केस दूसरे कार्बन को अटैच कर देना. ठीक है, दैट्स इट. है ना? मेक एवरीथिंग एज इट इज विदाउट द डबल बॉन्ड. अटैच ब्रोमीन इन वन कार्बन एक केस में और दूसरे केस में दूसरे कार्बन पे. इन अनसिमेट्रिक एल्कीन. नाउ ध्यान सुनिए. हाउ मेनी कार्बन्स इन दिस. अच्छा बताइए यहाँ पे. वी हैव टू लुक एट विच कार्बन एटम. वी हैव टू फोकस ऑन विच कार्बन एटम्स. बताइए. Second 2 and and 3. 2 and Three. 3. 2 and 3, राइट. ठीक है, बाकी सब तो भूल जाइएगा फिर, है ना. 2 and 3 में देख लेते हैं. 2 and 3 को 1 और 2 कर देते हैं ना. अच्छा, इन द फर्स्ट कार्बन एटम हाउ मेनी हाइड्रोजन्स. 1. 1 हाइड्रोजन. इन द सेकंड कार्बन हाउ मेनी. अच्छा ये बताइए नहीं सबको, बोलो भाई, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है. मरियम, यही खदीजा, Yes, sir. सिद्दीका. Yes, sir. हाँ, सेकंड वाले में बताइए. मरियम नहीं बताइएगा. सेकंड वाले में हाउ मेनी हाइड्रोजन. 2. सेकंड में हाउ मेनी. मरियम नहीं बताना है आपको. Oh, sorry. ठीक है. तो जहां पे कम हाइड्रोजन वहां पे वही मेजर. Attach the bromine, attach the negative part, attach the hydrogen atom on that carbon atom which is having less number of hydrogen, which is having less या more. बोलो. Less. Less number. तो बताइए, ए मेजर होगा या बी मेजर होगा. B. 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 ठीक है. अब देखिए जरा, वंस यू मेक द प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है. दिस वन इज 1 डिग्री, दिस वन इज 2 डिग्री. जो ज्यादा डिग्री वाला होगा वो मेजर आ जाएगा. हाँ या ना बताओ. Yes, जो sir. ज्यादा Yes, डिग्री वाला sir. वो मेजर. ठीक है ना. या तो प्रोडक्ट बनाने के बाद कर Yes, लीजिए या sir. तो पहले कर लीजिए. दोनों तरीके से आपको आना चाहिए. ठीक है. दिस इज माइनर, दिस इज मेजर. चलिए अब हम दे रहे हैं. तो मास्टर थोड़ा हल्का दे दो. आसान वाला समझा दिए, हार्ड वाला दे रहे हैं. तभी तो लर्निंग पता चलेगी ना. चलिए ये दोनों ही क्लियर कर लीजिए, काफी है. फिर बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सवाल पर.
करेक्ट मरियम, वेरी गुड। बस थोड़ा देखिए, जो आपका मेजर प्रोडक्ट है ना, उसमें दी CH2 विल नॉट बी ना, CH3 हो जाएगा वो, Okay, sir. है ना, मेजर वाले में। सर हमें मेजर और माइनर भी बनाना है। हाँ हाँ, दोनों बनाना है। जल्दी भेजिए बाकी लोग, मरियम ने भेजा सिर्फ अभी तक, यहिया, खदीजा, सिद्दीका, यहिया ने भेजा। नहीं यार, यहिया गलत है, सेकंड वाला तो गलत है। मेजर माइनर भी नहीं बताया आपने, यहिया। सेकंड वाला पूरा गलत है, मेक एवरीथिंग एज इट इज ना, पहले तो ये करो, वो ही नहीं कर रहे हैं आप। सॉरी गाइस, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। अरे भाई, यार ये क्या किया है यार आप लोगों ने। हाँ,
ये कहाँ है? खदीजा, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? खदीजा।